Good morning, student. Yesterday, I discussed the process of planning. Now, there are some terms you know very well, as for example, policy, strategy, procedure, budget. Now, tell me, what is this? Yes, you are right. This is type of plan. Now, today I shall discuss these all types of plan. Before discussing all these type of plans, I would like to explain the learning objectives of these types of plans. After studying these types of plan, the student will be able to understand the meaning and use of all these types of plan, as for example, budget, strategy, policy, procedure. Now, I shall discuss one by one these type of plans. Broadly, plans are divided into two categories. First is a standing plan and second is single use plan. In a standing plan, there are 6 types of plan. As for example, first is objective, second is strategy, third policy, fourth procedure, fifth methods, sixth rule. And in single use plan, there are 2 types of plan, programs and second is budget. Now, what is a standing plan? A standing plan is used for activities that occur regularly over a period of time. It is usually developed once, but is modified from time to time to meet business needs as required. Standing plans include policies, procedure, methods, and rules. As for example, there is admission procedure in our school. That there are certain steps which a parent have to follow to get their child admitted in the Kendriya Vidyalaya. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैंडिंग प्लान होता है वो हमेशा चलते रहता है, उसमें केवल थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद वो प्रत्येक साल वही स्टैंडिंग प्लान जो है चलते रहता है। जैसे पॉलिसी है, प्रोसीजर है, मेथड है, रूल्स है। जैसे रूल्स में जैसे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए रूल्स है, जैसे नो स्मोकिंग अलाउड इन द स्कूल and there are other rules regarding maintaining the discipline. Similarly, there are methods. Methods is a way of doing things in a systematic way. So these are the standing plan which are used year after year after only some modification. Now, single use plan. Single use plan, a single use plan is developed for a one-time event or project. Such a course of action is not likely to be repeated in future. That is, they are for non-recurring situation. The duration of this plan may depend upon the type of the project. It may extend for a week or a month. A project may sometimes be of only one day,
such as organizing an event or a seminar or conference. सिंगल यूज जो प्लान होता है केवल एक बार डेवलप होता है और इसका यूज एक ही बार होता है। एक बार यूज करने के बाद इस प्लान का जो वैल्यू है ख़त्म हो जाता है, यानी ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। एक बार यूज किए उसका उस प्लान का जो इम्पोर्टेंस है वैल्यू है ख़त्म हो गया, यानी प्लान जो है आउटडेटेड हो जाता है। जैसे कोई एक दिन सेमिनार ऑर्गेनाइज किए, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए, एक बार सेमिनार और कॉन्फ्रेंस अरेंज करने के लिए जो भी प्लान बनाए हैं उसी दिन तक रहेगा। फिर दूसरा सेमिनार कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना है, फिर दूसरे प्लान की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए इसको कहा गया सिंगल यूज प्लान। और नाउ देयर आर सम स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स में पहले आता है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव जो होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एंड रिजल्ट अचीव करना चाहता है उसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स आर द एंड टुवर्ड्स विच एवरी एक्टिविटीज इज एम्ड। ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब्स व्हाट इज टू बी डन। Objectives are prerequisite for planning. Objectives are expressed in quantitative or measurable terms. Objectives are results oriented, not activity oriented. It is normally formed by top level management. Objective जो होता है quantitative और measurable terms में express किया जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है। एज फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना सेल्स 10% इंक्रीज करना चाहता है या अपना जो प्रॉफिट है 10% इंक्रीज करना चाहता है या जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10% रिड्यूस करना चाहता है। मार्केट शेयर आपका 60% करना चाहता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं एंड रिजल्ट। ये जो क्वांटिटेटिव होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए। क्वांटिटेटिव का मतलब एक्सप्रेस इन क्वांटिटी। नाउ सेकेंड स्टैंडिंग प्लान इज स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी जो वर्ड है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया। स्ट्रेटजी वर्ड इज टेकन फ्रॉम द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है स्ट्रेटजी कैन बी डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द डिसीजंस टेकन एंड एक्शंस परफॉर्म बाय द बिजनेस टू accomplish द बिजनेस गोल्स। इट इज़ ए comprehensive plan for includes various steps for accomplishing organization's objective. A business objective without a strategy is just a dream. ऑब्जेक्टिव जैसे पहले बताया चुका है मिलिट्री वर्ड है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है। ऑब्जेक्टिव का मतलब जैसे हमको पाकिस्तान को डिफीट करना, तो हम कैसे सारे अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करेंगे, आर्म्स एंड एम्यूनिशन के डिप्लॉय करेंगे और कैसे उसको एक्शन में लाएंगे ताकि हम पाकिस्तान को डिफीट कर सकते हैं। उसी तरह से स्ट्रेटजी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज होता है। जैसे हमारे कंपटीटर, बहुत सारे कंपटीटर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो कैसे उसको डिफीट करना है, कैसे डिफीट करना है। जैसे अपना प्राइस डिक्रीज करके कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपना रिड्यूस करने से कर सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन कम करके कर सकते हैं। तो ये सब बिजनेस का स्ट्रेटजी फॉलो करता है टू अचीव द टारगेट एंड गोल। ऑब्जेक्टिव जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्या स्ट्रेटजी हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमारा कंपनी का प्रॉफिट 10% इंक्रीज करना है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या क्या स्ट्रेटजी एडॉप्ट कर सकते हैं। तो हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, कोई मॉडल लॉन्च कर सकते हैं, कोई नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या ऑनलाइन सेल्स कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा कंपटीटर जो ऑफलाइन सेल कर रहा,
मैं ऑनलाइन भी सेल करूँगा, ऑफलाइन भी सेल करूँगा। कोई नया सेलेक्ट न्यू एडवर्टीजमेंट मीडिया लाइक इंटरनेट मार्केटिंग एक्सेट्रा, कोई नया एडवर्टीजमेंट मीडिया सेलेक्ट करेंगे जिससे हम आपका एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट करेंगे अपने प्रोडक्ट का, और एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट करेंगे तो प्रोडक्ट का सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो ये कोई भी बिजनेस का स्ट्रेटजी हो सकता है। ना पॉलिसी, व्हाट इज पॉलिसी? पॉलिसी इज ए जनरल गाइडलाइंस which brings uniformity in decision making for achievement of predetermined objective. Policy defines boundaries within which decisions can be made. पॉलिसी जो होता है एक जनरल गाइडलाइंस होता है। पॉलिसी इज ए जनरल गाइडलाइंस which helps in decision making. एक जनरल गाइडलाइंस है जो डिसीजन लेने में हेल्प करता है। उसमें कोई भी सोचने समझने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले से पॉलिसी अगर बना है तो कोई भी मैनेजर आसानी से डिसीजन ले सकता है। जैसे मान लीजिए सेल्स पॉलिसी, द सेलिंग प्रोडक्ट ओनली ऑन कैश बेसिस और ओनली होलसेल। अगर हम पॉलिसी है मेरा है कि केवल कैश में ही सेल करेंगे गुड्स को, तो इसमें डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी प्रोडक्ट हम सेल करें तो कैश में करेंगे, क्रेडिट में सेल नहीं करेंगे। या अपना प्रोडक्ट केवल हम होलसेलर को सेल करेंगे, रिटेलर को नहीं सेल करेंगे, तो ये भी डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। अपना प्रोडक्ट को होलसेलर को सेल करेंगे, रिटेलर को नहीं करेंगे। तो ये जो पॉलिसी है डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जैसे दूसरा पॉलिसी है पॉलिसी ऑफ गिविंग एडमिशन टू स्टूडेंट सिक्योरिंग मोर देन 90%। एक पॉलिसी हम फॉर्म कर लेंगे, उसी बच्चे का एडमिशन स्कूल में देंगे जिसका मार्क्स जो है 90% से एबव है, तो हमको एडमिशन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। जिसका मार्क्स 90% से एबव है उसी का एडमिशन लेंगे, बाकी का एडमिशन नहीं है। तो पॉलिसी हमको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ना प्रोसीजर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी अगर वर्क है स्टेप बाय स्टेप किया जाता है उसको हम लोग प्रोसीजर कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमको चावल कुक करना है, तो चावल कुक करने के लिए पहले चावल लेंगे, उसमें से जो भी कंकर वगैरह निकालेंगे, उसको पानी में अच्छी तरह से धोना है, फिर उसको कुकर में डालना है। कुकर में एप्रोप्रिएट मात्रा में उसमें पानी डालना है, फिर कुकर का ढक्कन बंद करना है, फिर गैस स्टोव पर रखेंगे, गैस जलाएंगे, और जब 1-2 सीटी लग जाएगा इसका मतलब चावल पककर तैयार हो गया, उसको उतार देंगे कुकर से और चूल्हे से। तो एक प्रोसीजर है कैसे चावल बनाना। उसी तरह से कोई भी काम करने का एक प्रोसीजर होता है। तो प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर इज ए सीरीज ऑफ स्टेप्स टेकन टुगेदर टू अचीव ए डिजायर्ड रिजल्ट। दे आर स्पेसिफाइड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इट इज ए पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग ए जॉब। They prescribe the exact manner in which the work is to be performed. Procedure is necessary to speed up the performance. Procedures are rigid. There is no possibility for deviation. Procedure होता है rigid होता है, इसमें deviation की कोई गुंजाइश नहीं होता है। इसका मतलब पहला स्टेप है पहले स्टेप पर ही होगा, दूसरा वाला दूसरे पर होगा, यानी लास्ट स्टेप फर्स्ट या इस तरह बीच में इंटरचेंज नहीं हो सकता। जो स्टेप पहला करना पड़ेगा, जो सेकंड है सेकंड, थर्ड स्टेप है थर्ड। जैसे एग्जांपल है प्रोसीजर में, जैसे मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग एम्प्लॉइज, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, प्रोसीजर फॉर गिविंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू एन आउटसाइड एजेंसी। ये सब प्रोसीजर है। जैसे कोई एम्प्लॉय का सिलेक्शन करना है तो उसके लिए हमको न्यूज़पेपर में सबसे पहले एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है कि हमको एम्प्लॉय की ज़रूरत है, जो इंटरेस्टेड पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से जब एप्लीकेशन आ जाता है एम्प्लॉय का तो उसमें स्क्रूटनी होता है। स्क्रूटनी में जो जिसका क्वालिफ़िकेशन मीट नहीं होता उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जो क्वालिफ़िकेशन, जैसे मान लीजिए कॉमर्स टीचर के लिए एम कॉम और बीएड का डिग्री होना चाहिए। मान लीजिए कोई एम.कॉम का डिग्री अप्लाई किया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से
आपका जो भी रिटर्न जो सूटेबल कैंडिडेट है उसका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल चेकअप होगा। तो एक प्रोसीजर है सिलेक्शन का एम्प्लॉय का। तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान इज मेथड्स। पहले बता चुके हैं मेथड जो है सिस्टमेटिक कोई भी काम करने के तरीके को हम लोग मेथड कहते हैं। मेथड इज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन और रिपीटेटिव जॉब्स। इट डील्स विथ ए टास्क comprising one set of a procedure and specifies how this step is to be performed. Selection of proper method saves time, money and effort and increases efficiency. मेथड का जो होता है एक सिस्टमेटिक वे, कोई भी काम करने का तरीका होता है। अगर सिस्टमेटिक वे में काम करेंगे तो मेरा वेस्टेज नहीं होगा, इफिशिएंसी बढ़ेगा। अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई काम करते हैं या हिट एंड मिस मेथड से या ट्रायल एंड एरर मेथड से कोई काम करते हैं तो वो मेथड नहीं कहलाता। मेथड वो होता है जो सिस्टमेटिक वे में काम किया पहले से प्री डिटरमाइंड है, कैसे कैसे हमको काम को कंप्लीट करना है, तो उसको हम लोग मेथड कहते हैं। इससे हमारा एफिशिएंसी बढ़ता है, पैसा कम लगता है, कम समय में काम होता है और एफर्ट भी कम लगता है। मेथड का एग्जांपल है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, मेथड ऑफ वैल्यूएशन स्टॉक। जैसे बहुत सारे मेथड है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का, या जैसे कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, और कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर। कोई भी मेथड हो सकता है। एक तो लीफो होता है, मेथड होता है। एक फीफो मेथड इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। कोई भी अगर रॉ मटेरियल गोडाउन में लास्ट में आया है, लास्ट में परचेज किया हो तो उसको पहले प्रोडक्शन में भेजेंगे। अब फीफो में होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कोई भी गुड्स अगर पहले परचेज किए हैं तो उसको पहले प्रोडक्शन में भेजा जाए, रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये बहुत सारे मेथड है। अगर मेथड पहले से पता है तो काम करने में सुविधा नहीं होती है, समय बचता है, मनी बचता है और इफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। लास्ट type of standing plan is rules. Rules are a specific statement of what should or what should not be done in a specific situation. They do not allow any deviations. Rules are made for the purpose of creating discipline in the organization. रूल्स जो होता है स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है स्पेसिफिक होता है। इसमें कोई डिविएशन, कोई इसमें डिविएशन या इसमें कोई इधर उधर नहीं भटक सकता। रूल्स को पूरी तरह जो लिखा हुआ है उसी को फॉलो करना है। एक फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रूल हो सकता है, जैसे नो स्मोकिंग, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, यूजिंग मोबाइल फोन्स यूजिंग ऑफिस आवर इज प्रोहिबिटेड। दीज आर द रूल्स। अगर इसमें कोई वायलेट करता है ये सब रूल्स को तो पेनल्टी का भी प्रावधान रहता है। कोई रूल अगर वायलेट करता है तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाता है टू मेंटेन डिसिप्लिन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ सिंगल यूज प्लान क्या होता है पहले भी डिस्कस किया गया है कि जो प्लान एक बार यूज करने के बाद वो आउटडेटेड हो जाता है, इसका दूसरी बार यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें सिंगल यूज प्लान में प्रोग्राम पहला है। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम्स आर डिटेल्ड स्टेटमेंट्स अबाउट ए प्रोजेक्ट। प्रोग्राम में बी टेकन एज ए कम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज,
procedure, rules, tasks, human and physical resources required, budget, etc. The same program may not be used for achieving other goals. प्रोग्राम जो होता है एक डिटेल स्टेटमेंट होता है, इसमें सभी चीज़ रहता है, जैसे कम्बिनेशन रहता है पॉलिसी का, प्रोसीजर का, रूल्स का, टास्क, कहाँ से फिजिकल रिसोर्सेस अरेंज करेंगे, बजट भी रहता है। और एक बार जो प्रोग्राम यूज किए उसको फिर से दोबारा यूज नहीं करते कोई भी गोल को अचीव करने के लिए। जैसे प्रोग्राम का एग्जांपल है प्रोग्राम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल, प्रोग्राम फॉर ओपनिंग ए न्यू डिपार्टमेंट इन और बिजनेस। शॉपिंग मॉल खोलने के लिए कोई प्रोग्राम बनाए हैं, या कोई नया डिपार्टमेंट खोलने के लिए अपने बिजनेस में प्रोग्राम बनाए हैं। तो प्रोग्राम में सभी कुछ आता है, पॉलिसी भी है, प्रोसीजर भी है, रूल्स है, और फिजिकल रिसोर्सेज कैसे अरेंज करना है, कैसे उसको डिप्लॉय करना है, इसमें स्ट्रेटजी है, कैसे उसको डिप्लॉय करना है टू अचीव द गोल। बजट जो कि एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है वो भी प्रोग्राम में रहता है। सिंगल यूज प्लान में सेकंड है बजट। बजट क्या होता है? बजट इज ए रिकॉर्डेड प्लान ऑफ एक्शन expressed in a quantitative terms. It may be expressed in time, money or physical unit. It is an instrument of both planning and controlling. Budget preparation involves forecasting, therefore it comes under planning. Budget is a control device because budget helps to compare actual figures with the budgeted figure and take corrective action if necessary. एज फॉर एग्जाम्पल कैश बजट, सेल्स बजट। सेल्स बजट जैसे हम लोग प्रत्येक मल का सेल्स बजट बनाए, एडवांस में सेल्स बजट बना लिए कि जनवरी में हमको 1000 यूनिट सेल करना, फरवरी में 1200 यूनिट, मार्च में 1500। इस तरह से अगर बजट बनाए हैं तो उसको हम लोग जनवरी में 1000 यूनिट सेल हुआ कि नहीं उसको कंपेयर करते हैं बजटेड से। एक्चुअल में मेरा मान लीजिए 900 यूनिट ही सेल हुआ, तो 100 यूनिट का डिविएशन है तो उसका रीजन ढूंढेंगे, और रीजन ढूंढ कर उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेंगे ताकि सेल हमारा 1000 हो जाए। तो बजट जो है कंट्रोल में भी हेल्प करता है। और कोई भी अगर जैसे एक्सपेंसेस का भी बजट बनाते हैं, एक्सपेंसेस जैसे मान लीजिए हमारा प्रिंटिंग स्टेशनरी में जनवरी में 10,000 खर्च होना चाहिए। अगर 10,000 से ज़्यादा खर्च हो रहा है, 11,000 हो रहा है, 12,000 हो रहा है, इसका मतलब बजट से ज़्यादा है। तो उसको कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं? प्रिंटिंग स्टेशनरी कहाँ पर मेरा ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब बजट के अनुसार हम लोग चल सकते हैं। तो कंट्रोल में बजट ज़्यादा हेल्प करता है। बजट क्या होता है? क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्रेस होता है फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। Sorry, now at last I want to ask some question, and tell me the name of two standing plan. Yes, you are right. Policy and procedure. Now, what do you mean by single-use plan? Yes, you are right. The plan which is used for only one time, after use of one time, this plan becomes outdated. Examples of single-use plan is budget and program. Dear children, watch this video till the end and please do not forget to like it. Thank you.